telling you how to convert from rectangular form into the polar and exponential form. Anyone may convey the message to Anas Sabzwari. He must try his ID, otherwise he will not be allowed to enter into the class. Okay. So there was we had a complex number z is equal to -2 plus 3 iota, and we will convert into the uh, r will be equal to the square of the real part. It may be negative, it may be positive. You have to write in the bracket and then the whole square. Then in between the plus sign, then you will take the real imaginary part. That may be plus or minus, whatever it is, you will write in the bracket and the whole square without iota. Don't write iota. You must remember, you will not write iota. Iota will not be written. Iota is only the indicator. Iota is only the indicator. So that will become under root 4 plus 9. Under root 4 plus 9. That will be equal to under root 30. Okay. In this way, we will find R. That means the modulus of Z. Under root 13 is the mod Z. Now we will find theta, argument Z. We will find theta, argument Z. Okay. In this way, we will find mod Z, that is R. Now we will find argument Z. For finding argument Z, you must know in which quadrant the complex number lies. Z is equal to -2 plus 3 iota. So how, if you draw the Argand diagram, this will be the Argand diagram. X, Y, O. So -2 will be over there. Plus 3 iota. Iota imaginary number is 3 over there. ये 3 है, ये 2 है, -2 है. यहां पर जो है ये हमारे पास आर्गन डायग्राम बन गई. -2 plus 3 iota. This is the Argand diagram. ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट. दिस इज कॉल्ड द फोर्थ क्वाड्रेंट. There are 4 quadrants in the Cartesian graph. In the Cartesian plane, there are
4 quadrants: first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. First of all, we have to check in which quadrant the complex number lies. So that lies in the second quadrant. So first of all, we have to check in which quadrant this lies. So that lies in the second quadrant. Okay. मैं तमाम क्वाड्रेंट्स के लिख देता हूं किस क्वाड्रेंट में होगा तो कैसे हम थीटा फाइंड आउट करेंगे. आर्गुमेंट z, how to find the argument z, that is theta. First quadrant, if the complex number lies in the first quadrant, theta will be equal to tan inverse theta will be equal to tan inverse imaginary part divided by the real part. Imaginary part is b only, not iota b. B upon a, both should be positive. Tan inverse b upon a, that will be theta if it is in the first quadrant. If it is in the first quadrant, theta will be equal to tan inverse b upon a. Uzma Rajput is there. If anyone may convey the message, she must write her ID, otherwise he will not be allowed into the class. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan इनवर्स b अपॉन ए कर देंगे. अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. सेकंड क्वाड्रेंट, how to find theta if this lies in the second quadrant is just like that. This is the second quadrant. रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है. रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में. if it is in the second quadrant, how to find theta? Theta will be equal to 180 degree minus tan inverse b upon a. b और a दोनों पॉजिटिव लेने हैं. रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बोथ मस्ट बी पॉजिटिव. ये याद रखना है, जब भी हम tan इनवर्स लेंगे बोथ पार्ट्स को पॉजिटिव लेना है भाई, नेगेटिव किसी को भी नहीं लेना. b एंड a मस्ट बी पॉजिटिव. यहां बेशक नेगेटिव हो, कोई एक नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, लेकिन हमने क्या लेने हैं, इनके पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मॉड लेने हैं इनके. b का भी मॉड लेना है और a का भी मॉड लेना है. If it is in the second quadrant, 180 degree minus tan inverse b upon a. Or if it is in the third quadrant, theta will be equal to 180 degree plus tan inverse b upon a. Again, b and a must be positive. You have to take positive values of b and a. If it is in the fourth quadrant, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट बोथ आर पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव. बट वी हैव टू टेक इमेजिनरी पार्ट भी. tan इनवर्स जब लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव लेंगे अपॉन द रियल पार्ट, दैट शुड आल्सो बी पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, रियल और इमेजिनरी दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा. जब थर्ड क्वाड्रेंट भी होगा तो 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स b अपॉन ए. तो b भी पॉजिटिव लेना है, a भी पॉजिटिव लेना है, यानी इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट. ये भी याद रखें, रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट नहीं कर देना. यू हैव टू टेक imaginary part divided by the real part. Javeria Mateen.
तो हमने बी और ए पॉजिटिव लेना है। फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? रियल पार्ट पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा। If real part is positive, imaginary part is negative, it means that is in the complex number in the fourth quadrant. Fourth quadrant में होगा तो हम क्या करेंगे? Theta will be equal to 360 degree minus tan inverse B upon A. इसमें भी B और A, B upon A, ये तमाम केसेस में, this case, this case, this case, this case, all the four cases, B upon A must be positive. B is positive, A is positive. आपने positive values लेनी है. Complex number में they may be negative. One of them may be negative or both may be negative. But you have to take the positive values of B and A. And B is the imaginary part divided by the real part. Tan inverse, imaginary part divided by the real part. B क्या है? Imaginary part है और A क्या है? Real part है. So B upon A आपने पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है इमेजिनरी पार्ट की और डिवाइडेड बाय द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द रियल पार्ट और फिर उसका tan इनवर्स ले लेना है। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डायरेक्ट वो tan इनवर्स ले लेंगे, यू विल गेट द आंसर। इफ इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, you have to take 180 degree minus tan inverse B upon A. If it is in the third quadrant, 180 degree plus tan inverse B upon A. If it is the fourth quadrant, 360 degree minus tan inverse B upon A. सर फोर्थ क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कैसे होगा? दोनों नेगेटिव होंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा बेटा। और सर सेकंड में भी नेगेटिव होंगे, नहीं सॉरी, सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर रियल पार्ट पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होगा। सर थर्ड में भी तो सर सेम दोनों ही है ना? नेगेटिव होंगे थर्ड में, सेम नहीं होता। y भी नेगेटिव होता है, x भी नेगेटिव होता है, सेम नहीं होता बेटा, दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड में। x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। ओके, तो ये हमारे केसेस है हाउ टू फाइंड थीटा। और r का मैंने बता दिया हाउ टू फाइंड r कैसे निकालेंगे? रियल पार्ट डिवाइडेड बाय द, यहां मैं इसका फार्मूला, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, यहां इसका फार्मूला लिख देता हूं। r इज इक्वल टू होल अंडर रूट, ये प्लस माइनस मत कर देना, सिर्फ प्लस वो अंडर रूट होगा क्योंकि मॉड ले रहे हैं, मॉड ऑफ z, और ये रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस द इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विदाउट आयोटा। याद रखिए इसमें आयोटा नहीं लेना, ना यहाँ आयोटा लेना है, ना यहाँ कहीं आयोटा लेना है। बी के साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा ना यहाँ लेना है, ना यहाँ लेना है आर की वैल्यू में, और बीच में प्लस ही आएगा। यहाँ बेशक नेगेटिव हो, यहाँ बेशक नेगेटिव हो, लेकिन हमने बीच में प्लस ही लिखना है, ये फार्मूला है हमारे पास। मोहम्मद उस्मान राजपूत। सर फर्स्ट सेशन अटेंडेंस हो गई है? जी फर्स्ट सेशन अटेंडेंस मार्क कर लिया आपने? नहीं बेटा, नहीं करूंगा। 10 दफा बता चुका हूं कि जब आप अंदर आ गए इसका मतलब अटेंडेंस मार्क हो गई। फिर वही बात, एक ही चीज बार बार रिपीट करना। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। पता रखना चाहिए ना, मैं बार बार इसमें क्लास में कह रहा हूं। तुम फर्स्ट सेशन में थे नहीं क्या? सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था।
लेट ही मैंने बताया है। Okay, thank you, sir. एक ही चीज बार बार रिपीट करनी पड़ती है भाई। जब आप क्लास में दाखिल हो गए इसका मतलब आपकी अटेंडेंस हो गई। वेटिंग रूम से आप जब क्लास में दाखिल हो गए तो आपकी अटेंडेंस हो गई, खत्म बात। उसमें आपको मजीद वो करने की जरूरत नहीं है, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए आए हैं, यहाँ पढ़ने वढ़ने के लिए नहीं आए। उस पर ही आपकी तवज्जो है, अटेंडेंस हुई या नहीं हुई, अटेंडेंस हुई या नहीं हुई, पढ़ने पर कोई तवज्जो नहीं है। उसमें कोई भी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। हाँ, सिर्फ अटेंडेंस का बार बार पूछे चले जा रहे हैं। ओके, so this is the way how to find theta and r. ये तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया, हाउ टू फाइंड r, हाउ टू फाइंड थीटा. Now I will do the particular question. Z is equal to -2 plus 3 iota. इसका हम इसको हम पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम r फाइंड आउट करेंगे. r we have already found, the square of the real part plus the square of the imaginary part without iota. Iota नहीं लिखना बेटा. Okay, now we will find theta. r हमने फाइंड आउट कर लिया. theta, so that is real part is negative and the imaginary part is positive. Real part is negative, imaginary part is positive. So that means this is in the second quadrant. जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम ये फार्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द एंगल थीटा. सो थीटा विल बी इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b अपॉन ए, b3 है और a2 है. नेगेटिव नहीं, दोनों के पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है. बार बार बता रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय द रियल पार्ट एंड देयर पॉजिटिव वैल्यूज, नॉट नेगेटिव वैल्यूज. ये -2 है लेकिन हमने 2 ही लिया, ये तो ऑलरेडी +3 था. इनके पॉजिटिव वैल्यूज हमने लेनी है. सो 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स b अपॉन ए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए. थर्ड क्वाड्रेंट होता तो वो थर्ड क्वाड्रेंट कब होता है? जब दोनों नेगेटिव होते हैं. तो 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स b अपॉन ए. और फोर्थ क्वाड्रेंट कब होता? जब रियल पार्ट पॉजिटिव होता है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है. ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता, दैट विल बी द फोर्थ क्वाड्रेंट. सो फिर ये फार्मूला यूज करते, 360 डिग्री माइनस tan इनवर्स b अपॉन ए. लेकिन b और a दोनों पॉजिटिव लेने हैं. b क्या है? पहले imaginary part divided by the real part. Okay, so here 180 degree minus tan inverse 3 upon a. So find the answer, tan inverse 3 upon a, और उसको 180 में से माइनस कर दें. 123.6 जी 123.6. 6 tan inverse 3 upon a की बात कर रहे हैं या फुल की बात कर रहे हैं आप? सर पूरा आंसर. पूरा आंसर 123.6. 3 डेसिमल तक बताया करें भाई, 3 डेसिमल तक आंसर दिया करें. 0.690. 690. ओके, डिग्रीज क्या है? ये डिग्री है, हमने डिग्री लिखना है. अगर ये रेडियन में आप ले रहे हैं तो 180 डिग्री की जगह आप पाई लिखेंगे, और 180 की जगह पाई लिखेंगे, 360 की जगह 2 पाई लिखेंगे, और इसका आंसर भी रेडियन में होगा. तो रेडियन मोड में अगर आपका कैलकुलेटर है तो 180 डिग्री की जगह पाई, यहां भी 180 की जगह पाई, यहां 360 की जगह 2 पाई, अगर आप रेडियन में ले रहे हैं तो. वरना आप डिग्री मोड में है, ये चेक कर लिया कीजिए कैलकुलेटर में कि यहां तो आपने डिग्री लिख दिया और कैलकुलेटर आपका रेडियन में आंसर दे रहा है, तो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन आपका. डिग्री है तो ये भी डिग्री, ये रेडियन है तो ये भी रेडियन.
तो किसी एक उसमें ले सकते हैं आप, रेडियन में डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास थीटा भी आ गया और हमारे पास आर भी आ गया। अब हम इसको पोलर फॉर्म में लिख देते हैं। यहां मैं इसका पोलर फॉर्म में लिख देता हूं। पोलर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर है हमारे पास √13, तो z इज इक्वल टू √13, ये हमने आर लिख दिया। इसके बाद कॉस थीटा है 123.69, प्लस बीच में प्लस का साइन, आयोटा साइन 123.69 डिग्री। ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म आ गई। ये सही नजर नहीं आ रहा आपको, वहां से कुछ हिस्सा इसका मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके बता देता हूँ, शायद आ जाए। नहीं नहीं, इसको मैं मिटा के दोबारा लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। ये आपको नजर नहीं आ रहा सही, रिफ्लेक्शन की वजह से। यहाँ लिखता हूं मैं पोलर क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू √13 इंटू cos 123.69 डिग्री प्लस आयोटा साइन 123.69 डिग्री। ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ गया। पहले आर की वैल्यू डाल लिए, फिर ब्रैकेट कॉस, एंगल डाल देना है, डिग्री में है तो डिग्री ऊपर साइन डाल दें, अगर रेडियन में है तो नो नीड टू पुट द साइन ऑफ डिग्री। जस्ट अगर साइन नहीं होगा डिग्री का तो वो एंगल क्या होगा, वो रेडियन में तस्वूर किया जाएगा, याद रखिए। तो अगर आपने डिग्री में निकाला है तो आप डिग्री का साइन जरूर डालेंगे एंगल के ऊपर। ओके, ये तो हो गया पोलर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे होगी, z इज इक्वल टू, आपने पहले r की वैल्यू डाल दी, फिर आपने e लिख दिया, e के ऊपर आयोटा डाल दिया पावर में, और ब्रैकेट में एंगल डाल दिया 123.69 डिग्री, ये ब्रैकेट में आपने डाल दिया। ये पावर है, e के ऊपर है, नीचे नहीं है भाई, नीचे मत लिख दीजिएगा। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आर और थीटा तो एक ही, दोनों से एक ही तरह निकाला जाता है, एक ही दफा निकाल लेंगे। अगर आपसे दोनों पूछे गए हैं, दोनों में कन्वर्ट करना है तो आप दोनों में लिख दीजिए यहाँ, और एक किसी एक में लिखना है तो कोई एक लिख दीजिए। ये तो आपने आर और थीटा तो निकालना है कॉमन। उसके बाद अगर पोलर पूछा गया तो पोलर सिर्फ लिख दीजिए, अगर एक्सपोनेंशियल पूछा गया सिर्फ एक्सपोनेंशियल लिख दीजिए, दोनों पूछे गए दोनों लिख दीजिए। So this is the way how to convert। सर इसका क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में? यही मैंने लिखा जो है, convert the following into the polar और exponential form, यही आएगा। और क्या आएगा, लाइबा लाइबा 1 7। इसका क्वेश्चन ऐसे ही आएगा बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, या कन्वर्ट द फॉलोइंग complex number into the exponential form, या convert the following complex number into the
complex into the rectangular into the polar and exponential form. दोनों पूछ लेगा, एक पूछ लेगा, किसी एक को पूछ सकता है, कोई एक में कन्वर्ट कर दें, दोनों पूछे दोनों लिखें, एक पूछा एक लिखें, जरूरी नहीं। ये नहीं कि अगर पूछा आपसे पोलर गया आप एक्सपोनेंशियल भी साथ में लिख दे, तो पूछा नहीं गया, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। पूछा आपसे एक क्वेश्चन गया है कि एक्सपोनेंशियल में लिखे, तो आप उसको पोलर भी लिख रहे हैं? नहीं भाई, पोलर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सपोनेंशियल पूछा है तो आप सिर्फ एक्सपोनेंशियल ही लिखिए। जी सर, समझ गया सर। पोलर पूछा गया तो सिर्फ पोलर लिखिए, एक्सपोनेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है कि बिला वजह में एक्सपोनेंशियल भी लिखना शुरू कर दें, पोलर भी लिखना शुरू कर दें कि टीचर ने तो दोनों बताए थे। भाई मैं तो सब कुछ बताऊंगा, पूरी किताब बता रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं आप पूरी किताब सॉल्व करने बैठ जाए, वहां जितना पूछा गया उतना बताएं। अपना वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। जो पूछा नहीं गया वो बनाना शुरू कर दिया, आपसे आर्गन डायग्राम नहीं पूछी गई, आप आर्गन डायग्राम बनाना शुरू कर दे। जब जो चीज पूछी जा रही है उतना ही जवाब दिया करें बेटा, वरना आपका टाइम वेस्ट होता है बेला वजह में। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम रेक्टेंगुलर फॉर्म इनटू द पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अगर पोलर या एक्सपोनेंशियल हो तो उसको रेक्टेंगुलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। सपोज ये हमें ये पोलर फॉर्म दी गई है, ये हमें पोलर फॉर्म दी गई है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन फ्रॉम, अब ये पोलर एक्सपोनेंशियल इनटू रेक्टेंगुलर, अभी हमने रेक्टेंगुलर से पोलर एक्सपोनेंशियल में किया था, अब हमें पोलर से रेक्टेंगुलर में करना है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, पोलर फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है। क्या दिया गया है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में z इज इक्वल टू √13 e raised to power iota 123.69 डिग्री। ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम डायरेक्ट जो है उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते रेक्टेंगुलर में। सबसे पहले हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सबसे पहले हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाउ टू कन्वर्ट पोलर फॉर्म, इसकी कैसे बन जाएगी? z will be equal to √13 into cos of, एंगल डाल दे 123.69 डिग्री प्लस आयोटा साइन 123 डिग्री 123.69 डिग्री। तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पहले पोलर में कन्वर्ट कर दिया। अब पोलर से हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे रेक्टेंगुलर में। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसे हो जाएगी? देखिए, रेक्टेंगुलर z विल बी इक्वल टू, पहले √13 की वैल्यू डालिए। इसको आप √13 को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले, इसकी क्या वैल्यू होगी √13 की, सबसे पहले आपने वो डालनी है। √13, ये आंसर आ गया हमारे पास 3.6055 यानी 3.606, 3.606, ये √13 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने cos 123.69 डिग्री की वैल्यू डाल देनी है।
cos 123.69 डिग्री। ये आप हमारे पास आ गया -0.5546 यानी -0.555 5546 3 डेसिमल तक 4 तक लेना है, उसके बाद 6 है तो ये +1 हो जाएगा थर्ड वाला। उसके बाद हमने साइन प्लस आयोटा लिख देना है इनटू साइन 123.69 डिग्री, साइन 123.69 डिग्री। ये हो गया हमारे पास 0.83832। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज डाल दी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दे, ब्रैकेट के बाहर जो है 3.606 इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.606 इंटू प्लस माइनस माइनस लिख देंगे 3.606 इंटू 0.555 2.001 2.001। इसी तरह इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है, प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस और आयोटा आ जाएगा, और 3.606 इंटू 0.832 मल्टीप्लाई करेंगे 3.001 जी। क्या आ गया? हेलो 3.001 3.001। तो ये ऑलमोस्ट वही आ गया -2 प्लस 3 आयोटा, वही आ गया जो हमने शुरू में किया था। तो इन दिस वे वी विल कन्वर्ट this the decimal into the okay. Note it down, the time this session is going to finish.